अभी करेंगे. Today's lecture is hybridization. I started this little bit, and today I will take this topic. What is hybridization? What are the main points of hybridization? What to know about this concept in lower classes? I will tell you. Okay. Hybridization is सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखेंगे. Hybridization is not a real concept. Is not a real concept. Concept was given by Pauling. Pauling scientist ने दिया है. Hybridization is directional phenomenon. And hybridization को जब हम यहाँ पे define करते हैं, hybridization is a process to mix and redistribute different orbitals to make them identical in shape and energy. To make them identical in shape and energy. ध्यान दीजिए बेटा. When different orbitals mix up and they will form the identical orbitals which are identical in shape and energy. Okay. Main points and postulates of this hybridization. Simply, hybridization is the process to mix and redistribute different orbitals and to make them identical in shape and energy. All the hybrid orbitals have same energy, and all the hybrid orbitals have similar shape. Okay. What are the various postulates? Postulates are main points regarding this. First one, hypothetical phenomena. Not real concept, but is a hypothetical phenomenon. I am writing very short. मैं elaborate करके नहीं लिखता हूँ क्योंकि जाके पता है कि आपने ये already पढ़ चुकी हो अच्छे से. क्योंकि जिस point पे मुझे आना है, I am trying my best कि मैं आपको step by step वहाँ तक ले जाऊँ. क्योंकि number of students are there which don't have the basic concept. That is why I take this topic. Second, number of hybrid orbitals is equal to the number of orbitals participated. Number of hybrid orbitals is equal to the number of orbitals participated. Okay. And the third point, they arrange themselves. They arrange themselves, मतलब hybrid orbitals arrange themselves in such a way to minimize the repulsion hence they have fixed geometry.
hence they have fixed geometry. ध्यान दीजिए बेटा एक ही पॉइंट पे। देखो बेटा, hypothetical phenomena है, hybrid orbitals will be equal to the number of orbitals participated, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि number of orbitals, number of atomic orbitals equal to the number of hybrid orbitals. जितने number of hybrid atomic orbitals यूज हुए होंगे to form the hybrid orbitals वो equal होगा, ठीक है। इसलिए number of hybrid orbitals is equal to the number of orbitals participated. They arrange themselves, these hybrid orbitals arrange themselves in such a way so that there must be minimum repulsion and there is formation of a geometry that is fixed geometry. Okay. अब देखिए बेटा, always hybridization के केस में हम बात नहीं करते कभी भी पाई बॉन्ड की, always form sigma bond, always form sigma bond. अब देखिए कभी भी हम जब बात करते हैं हम सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग की बात करते हैं इन केस ऑफ दिस, जब हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, ठीक है। शेप किस पे डिपेंड है? शेप, आज सर्दी की वजह से बोर्ड भी लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। द शेप एंड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, फिफ्थ पॉइंट, द शेप, ध्यान दीजिए बेटा, द शेप एंड द energy, the shape and the energy, the shape and the energy depends upon character percent of orbital. इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर परसेंट ऑफ ऑर्बिटल। शेप और एनर्जी की जो बात है वो इस पे डिपेंडेंट है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन है, एस का कितना कैरेक्टर है, पी का कितना कैरेक्टर है, इस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल 1s + 1p, इसका 50%, इसका 50% हो गया sp, इसका s + 2p हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन, s + 3p हो गया sp3, so on and so forth। d + s + 2p हो गया dsp2। ओके, तो कितना परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल्स है उस पे डिपेंडेंट है कि उसकी शेप क्या होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी। इसकी शेप अलग होगी, इसकी शेप अलग होगी, इसकी शेप अलग होगी, इसकी शेप अलग होगी, बिकॉज द पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल्स डिपेंड, ये इस पे डिपेंड है कि पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल्स कौन कौन से और कितना इनका कैरेक्टर होगा। और अगर आपको कैरेक्टर निकालना होगा, यू कैन कैलकुलेट द कैरेक्टर फ्रॉम cos थीटा इक्वल टू p - 1 by divided by p. You can calculate, if you know the theta, you can easily calculate, if you know the theta of the this shape or geometry, you can calculate the percentage of p or percentage of s character. Okay, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट जाऊंगा कि कौन कौन सी शेप और किस में क्या बन सकता है, ठीक है बेटा। मैसेज अरे बेटा देखिए, इसमें यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो जरूर बताइएगा। मैंने अभी तक कुछ नहीं बता दिया, अभी तक सिंपल जो भी था अभी तक वही बताया जो आप जानते हो। अब देखिए बेटा, शेप आपको तुरंत पता चलना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन का पर्टिकुलर फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसको हम लिखेंगे h। बाद में हमें ये h निकालना है थ्रू फार्मूला। मैं इसके लिए आपको 2 फार्मूलाज बताऊंगा, ट्रिक भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, आगे देखते जाइए आप। फिर इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, किसी में हम आपको जो एग्जांपल किसी में आएगी वो बताते जाएंगे। फर्स्ट फॉर एग्जांपल sp, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
क्योंकि नंबर ऑफ कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन एस एंड पी, तो इसलिए जाके यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 2 एंड द ज्योमेट्री विल बी द लीनियर, और यहाँ पे जाके क्या होगा, लीनियर होगा, 180 डिग्री एंगल होगा, तो ज्योमेट्री विल बी लीनियर। जहाँ पे भी आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे वहां पे ज्योमेट्री होगी लीनियर, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है BeCl2, एग्जाम्पल है BeCl2, एग्जाम्पल आप देते जाइए, जहां जहां जब पता चलेगा आपको वहां पे आप आगे बताते जाएंगे। आप sp2, इसमें जाके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 एंड द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब आपका सेंट्रल एटम फिर जाके आपको इस तरीके से है, ये जो शेप है दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर की जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल BCl3, टी ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं, प्लेनर, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा एक और है sp3 एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, और यहाँ पे जो शेप बनेगी वो बनेगी टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल, ठीक है। दिस इज टेट्राहीड्रल शेप, दिस इज टेट्राहीड्रल शेप एंड द एग्जांपल्स आपको पता है कि CH4 TD, द ज्योमेट्री इज TD, टेट्राहीड्रल। फिर से बोलेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन या मिक्स and they redistribute the energy to form the hybrid orbitals, and these hybrid orbitals arrange themselves in such a way so that there will be minimum repulsion, okay। देखिए बेटा इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे DsP2 और DsP2 में जो d ऑर्बिटल यूज होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कौन सा d ऑर्बिटल, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो आप देखेंगे आगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज होता है dx²y², बिकॉज p जो यूज होता है, किसी का माइक ऑन है इसको ऑफ कीजिए बेटा, क्योंकि बाद में जो वीडियो लोग देखते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये आवाज आती है, इससे प्लीज वीडियो बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है कि आप अपनी माइक ऑफ रखिए। जो d ऑर्बिटल है वो होता है, इसमें जो d यूज होता है d ऑर्बिटल, दिस इज dx²y² एंड s एंड px एंड py, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, बिकॉज 2 p, 1 s, 1 d, बट यहाँ पे जो शेप बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर, जो शेप बनेगी दैट विल बी द स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है, NiCN4 2 नेगेटिव। इसी तरीके से बेटा और एक हाइब्रिडाइजेशन भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको नहीं उतारा होगा कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए बेटा देखते जाइए आप आगे। आगे देखिए बेटा, और sd3 is also sd3 hybridization, sd3 number of hybrid orbitals 1s and 3d, ठीक है, 3d नहीं मतलब 3 टाइम्स d ऑर्बिटल, dxy dyz dz। d ऑर्बिटल जो यहाँ पे यूज होता है, जो 3 d ऑर्बिटल यूज होते हैं उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, dxy dyz dz यूज होते हैं इसमें। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 4 एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल, एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिए इसके लिए, टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल इज KMnO4। In case of this example, the hybridization is the hybridization is sd3। माइक किसकी ऑन है, माइक किसी की ऑन है, अनीसा मेराज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके ठीक है बेटा, बाकी किसी का नहीं, आप ही कराएंगे ऐसा, ओके। देखिए बेटा यहाँ पे टेट्राहेड्रल KMnO4 भी है, या इसी तरीके से K2Cr2O7 भी है, इसकी एग्जांपल K2Cr2O7 भी है। यहाँ बेटा इसी तरीके से CrO2Cl2 भी है, जिसमें जाके यूज होता है, जो हाइब्रिडेशन होती है वो होती है sd3 नॉट sp3। वो क्यों होता है वो भी आप आगे जानेंगे। नंबर 5 था ये। नंबर 6 DsP3, DsP3 और sp3d। अगर आउटर डी यूज किया तो sp3d करेंगे हम बोलेंगे,
अगर इनर वाला डी यूज किया तो DsP3 है। ये ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोज कॉम्प्लेक्सेस विच फॉर्म द DsP3 इनर डी ऑर्बिटल जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 3D यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अगर वो आउटर यूज कर रहा है तो मतलब 4D यूज कर रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तब उसको बोलते हैं क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस और दिस कॉम्प्लेक्स आर डिवाइड इनटू इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये चीज। सेकेंड, इसका जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 5, और द शेप विल बी दिस TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ध्यान दीजिए बेटा, ट्राइगोनल मैं पूछूंगा एक एक करके मैं पूछूंगा जरूर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहले आप ट्राइंगल बनाइए, ट्राइंगल बनाते जाइए आप। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं बनाऊंगा ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है, इसको मैं ज्वाइन करूंगा। ये ट्राइंगल है बाइपिरामिडल, ऊपर और नीचे, ठीक है। दिस इज TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जो डी ऑर्बिटल इसमें यूज होता है, दैट इज DZ स्क्वायर। ओनली वन D is here used in this case, that is the DZ square. DZ square is used for this hybridization. Okay, next, फिर से मैं लिखूंगा 7th B में लिखूंगा sp3d or sp3d or DsP3 फिर से लिखूंगा मैं 5, बट नाउ द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल देखिए कैसे, स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर बनाया आपने और स्क्वायर के ऊपर एक रखिए आप, ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन कर सकते हो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। मतलब एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के ऊपर आपने ऊपर रखा एक, तो यहाँ पे जो शेप बनेगी दैट विल बी द स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। बस फर्क क्या होगा, जो यहाँ पे D यूज हुआ होगा, दैट D इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, द D यूज फॉर दिस इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके 5 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 5 इन बोथ द केसेस, and the hybridization in both the cases DsP3 or sp3d, but the shape is, there are two geometries possible. One is TBP, trigonal bipyramidal, and another is square pyramidal, depending upon the availability of the d orbital. If the d orbital used for the hybridization is DZ square, then it will form the TBP, trigonal bipyramidal. But if it will use the d orbital DX square y square, then it will form the geometry will be the square pyramidal. Okay, next. नेक्स्ट अब बेटा देखिएगा D2 sp3 और sp3d2, इसमें कितने आपके आ रहे हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड द ज्योमेट्री विल बी द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सिंपल है, आपने स्क्वायर बनाया आपने, और स्क्वायर के ऊपर और नीचे एक लीजेंड होगा, एंड दिस शेप आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसी तरीके से इसको भी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ये बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन, एंड द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रॉन जिसको बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल इज शेप, ज्योमेट्री। ओके, ऑर्बिटल जो यूज होता है इसमें, वो यूज होता है DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। द ऑर्बिटल यूज्ड फॉर दिस इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, बिकॉज 2 D orbitals are used. DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर आर यूज्ड फॉर दिस। सिमिलरली आप आगे जा सकते हो, इसके बाद 9th वाला आप जा सकते हो D3 sp3 और sp3dc। इसमें आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 7, and the possibility of the geometry is pentagonal bipyramidal, PBP, pentagonal bipyramidal। कैसे बनेगा पेंटागन? पेंटागन बनाइए, पहले आप बनाइए इस तरीके से पेंटागन, ठीक है। ये हो गया पेंटागन आपका, इसको ज्वाइन कीजिए जैसे आप बनाते हो 5 मेंबर्ड रिंग। आप जाके इस पेंटागन को, बिकॉज इट इज प्लेनर रिंग,
इट इज प्लेनर इन नेचर। आप इसको ऊपर एक नीचे एक रखिए तो ये बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 7 बिकॉज जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म द बॉन्ड विद द जिसके साथ जिसको बॉन्ड बनाना होगा। ठीक है, आगे और बढ़ सकते हैं, और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ अदर ज्योमेट्रीज इज पॉसिबल इन दिस केस, नंबर ऑफ अदर ज्योमेट्रीज इज पॉसिबल। मैं आपको कुछ शो करूंगा यहाँ पे, बट बिफोर दैट मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा कि इसकी फार्मूला क्या है, किस फार्मूला से यहाँ पे दिखाते हैं। मैं 8 के बाद जाऊंगा 9 पे भी जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 पे मैं आया कि नहीं, मैं 8 पे आऊंगा पहले। ठीक है, पहले 8 पे आएंगे, उसके बाद फार्मूला बताएंगे, क्योंकि आपका दूसरा क्लास भी है, मुझे इस चीज का ख्याल है, इसलिए मैं टाइम भी देख रहा हूँ। और एक पॉसिबल है, अगर होगा D4 sp3, D4 sp3, इसका जो H होगा 8, और यहाँ पे जो शेप बनेगी, दो शेप बन सकते हैं। एक को बोलते हैं हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है डोडेकाहेड्रा, डोडेकाहेड्रा, डोडेकाहेड्रा। बहुत सिंपल है, बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बना दिया आपने, ये हो गए 6, बेंजीन रिंग बना दी, हो गए 6, यहाँ पे एक और एक 7 और 8, ये हो गया डोडेकाहेड्रा। बट 8 पे और एक शेप बन सकती है जिसको बोलते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, इस पे और एक शेप बन सकती है स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, एंटीप्रिज्मेटिक। वो कैसे बनती है, ऐसे स्क्वायर आपने बना दिया एक, ठीक है, एक स्क्वायर ऐसे बना दिया और दूसरा स्क्वायर इसका ये इस तरीके से, जस्ट लाइक सितार, जब आप बच्चे थे तब आप ऐसे बना। अब देखिए इसमें भी 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। जो डोडेकाहेड्रा में है, इसकी एग्जांपल लिख सकते हो, इसमें एग्जांपल जरूर लिखिएगा। इसमें एग्जांपल है MOCN8, MOCN8 4 नेगेटिव, MOCN8 4 नेगेटिव। और इसमें एंटीप्रिज्मेटिक में जो एग्जांपल है IF8 नेगेटिव, IF8 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल यूज होते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में, DXY, DYZ, DZX एंड DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि 4 डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में आपको यूज हो रहा है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। और उसमें जाके क्या होता है कि सब यही चेंजेस DXY, DYZ, DZX, बट DZ स्क्वायर यहाँ पे यूज होता है। तो आप देखिए कि कौन सा ऑर्बिटल किस में यूज होता है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और एग्जांपल मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, इसमें और एक पॉसिबिलिटी है, और एक हाइब्रिडेशन पॉसिबल, इसको आप फोटो उठा सकते हो। और एक पॉसिबिलिटी भी है 8 में और एक पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्री की। 8 आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, 8 इसमें मैंने दिखा दिया। 8 में और एक पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडेशन की, दैट इज FD3। इसमें जो D में 8 में जो पॉसिबिलिटी है वो है FD3sp3, मतलब F ऑर्बिटल भी यूज हो सकता है। F ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है, F ऑर्बिटल आप लिख सकते हो पहले, Fx क्यूब, Fy क्यूब, Fz क्यूब, कितने होते हैं टोटल 7। फिर होता है Fxyz, हो गए 4। फिफ्थ होता है Fxy माइनस z स्क्वायर। फिर इसी तरीके से Fy z माइनस x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे Fz x माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके 7 ऑर्बिटल्स है, ये F ऑर्बिटल्स के नाम है। ठीक है, F सबशेल के नाम है, 7 ऑर्बिटल्स है, जिस तरीके से DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर, इस तरीके से इसका है Fx क्यूब, Fy क्यूब, Fz क्यूब, Fxyz, Fxy माइनस z का स्क्वायर, Fy z माइनस x का स्क्वायर, Fz x माइनस y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो आपको पॉसिबिलिटी जो शेप है वो एक्चुअली इसमें दिखा रहा है क्यूबिक। ठीक है, ऑर्बिटल जो यूज होता है क्यूबिक, बट ऑर्बिटल कौन कौन सा यूज होता है, एक होता है DXY,
dy z dzx और fxyz बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है। fxyz sp तो पता है, s पूरे p या पूरे pxy py pz, तो ये इसके ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है UNCS 8 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव, ये इसकी एग्जांपल है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है क्यूबिक, ठीक है, स्ट्रक्चर इज क्यूबिक। तो इस तरीके से आपका H जब 8 होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 8, तो उसमें जाके जो शेप है हाइब्रिडेशन 2 पॉसिबिलिटी है, D4sp3 भी पॉसिबल है, FD3sp3 भी पॉसिबल है। कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। 9th वाला, लास्ट वाला दिखाऊंगा बाद में, आपको ये अगर टाइम मिला तो आपको ये भी दिखा देंगे, भी फॉर्मूला भी। D5 5 के 5 d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं sp3 and number of hybrid orbitals is 9. The shape is tri-capped prismatic. Tri-capped prismatic. Tri-capped prismatic. Tri-capped prismatic. ये शेप कैसे होगी ये देखिए आप, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, कितने हो गए 1 2 and 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा बीच में, जो यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से 7 8 और 9 बीच में। तो दिस शेप इज नोन एज ट्राई-कैप्ड प्रिज्मेटिक। द एग्जाम्पल इज ReH9 2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको कि कितने हाइब्रिडेशन पॉसिबल है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो आप इसमें फार्मूला है जिसको बोलते हैं ड्रैगो ट्रिक, इसको सिर्फ लिख के रखो आप, इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगा, कल क्लास लेंगे, कल छुट्टी है मुझे यूनिवर्सिटी से। H इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ड्रैगो ट्रिक, इससे हम निकालते हैं H इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ये मैं कल